Good afternoon, everyone. Good afternoon, one and all. I am Anupama Suresh Rawat. I have done my PhD in economics from Barkatullah University, Bhopal. I have been a part of Bhopal for a long time, served here for more than 24 years now. In between, for 3 years, I was the director, Symbiosis Center for Management Studies, Pune. I was heading a management institution over there, which was an undergraduate institution. Today, my presentation topic is consumption function, which is a part of Keynesian economics, जो कि कीन्स के अर्थशास्त्र का एक बहुत ही मुख्य अंग माना जाता है कंजम्पशन फंक्शन, उपभोग फलन. My presentation is around the same topic. What is consumption basically, and what types of consumption we come across? If we see, just define in a very ordinary way. So the definition of consumption is that whatever we consume for our daily day-to-day usages, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़रीद फ़रोख्त करते हैं हम, और भी चीज़ें होती हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं, all that become a part of our consumption. So there is direct or final consumption, then there is also indirect or productive consumption. The final consumption or direct consumption is basically for satisfying the human wants. इंसान की ज़रूरतें जो होती हैं, ह्यूमन वॉन्ट्स होती हैं, उनको इमीडिएटली सेटिस्फाई करने के लिए जो भी हम कंज्यूम करते हैं, जो उपभोग करते हैं, जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से हमें बाजार में जाना पड़ता है उन चीज़ों को खरीदने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे डायरेक्ट या फाइनल कंजम्पशन में आती हैं. इनडायरेक्ट और प्रोडक्टिव कंजम्पशन व्हेन द गुड्स आर नॉट मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रोज़मर्रा में आप देखेंगे कि जो इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं आप, वो आपके डायरेक्ट उपभोग में नहीं आती हैं. जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है स्लाइड में, फर्टिलाइजर जो होता है एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, खाद, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को उगाने के लिए या हमारी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए हम डालते हैं. हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स डालते हैं, ट्रैक्टर होता है, टेक्नोलॉजी होती है. इकोनॉमिक्स में हम ये सब पढ़ते हैं, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है. ये सब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं. तो कहीं ना कहीं हम उपभोग कर रहे हैं अनाजों का, या वी आर कंज्यूमिंग गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर एग्रीकल्चर, that is the crops, but for that we are using certain inputs like fertilizer, high yielding variety seeds, etc. So that is an indirect type of consumption. Before we go for or embark on consumption function exactly, we need to understand how the economy functions, because this is a part of macroeconomics, and consumption function is an integral part of an individual consumption. If we want to understand from the basic, we need to see what an individual's pattern of consumption would be. Whereas this is consumption function is a part of macroeconomics. So we need to study what type of an economy normally is, what is the basic structure of an economy. We have studied the various sector models. One is the basic sector is the two sector model. इसमें दो ही सेक्टर होते हैं. एक होता है हाउस होल्ड, जिसे हम बोलते हैं आपका जो गृह क्षेत्र है, जहाँ पर सारे संसाधन रहते हैं. All the factors of production reside in household sector. Whereas the other is the business firm, जिसमें कि सारी उत्पादन की जाने वाली वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, या हम इसको कह सकते हैं उद्योग क्षेत्र, फर्म का क्षेत्र. तो हम एक बेसिक रूप से या बेसिक मॉडल जो एनकाउंटर करते हैं वो ये टू सेक्टर मॉडल है. इसके अलावा तीन सेक्टर मॉडल भी होता है. जब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, सरकारी हस्तक्षेप में होगा, तो ये तीन सेक्टर मॉडल हो जाता है. और अगर हम विदेश से व्यापार करेंगे तो हम इसको चार क्षेत्रीय मॉडल के रूप में पढ़ेंगे या फोर सेक्टर मॉडल पढ़ेंगे. बट बेसिक इकोनॉमिक्स, so what happens is that there is a link between households and business from these two sectors. What is the link? The link is that we go to the market to consume, because we need to consume, we have wants, so we go to the market to buy our basic wants. When we buy our wants in forms of goods and services, we are giving that income to somebody else. Who earns that income? वो जो हम पैसा देते हैं वो किसकी आय बनती है? वो आय बनती है बिजनेस फर्म की, जो वहां पर उसको उत्पादित करके मार्केट में लेकर आया है. So household is a sector where all the factors of production reside, whereas business firm is a sector where the goods and services are being produced. But there is an interlink. Whatever goods and services are being produced, they get in the form of price you have paid in the market in the form of income, whereas the household earns in the form of factor incomes. What are the factors of production? Land, labor, capital, organization, etc. We all know about it. Land earns rent, the labor earns wages, and the organization salaries, and the entrepreneur earns the profits. तो इन सारे फैक्टर इनकम्स, वेजेस या अर्निंग्स के रूप में हाउस होल्ड को मिलती हैं. और हाउस होल्ड की जब इनकम जनरेट होती है
उसकी आय बनती है, तब ही वो संभव हो पाता है कि वो बाजार में जाके उसको खर्च करे, और वो जो खर्चा होता है वो बिजनेस फर्म की आय बनती है. इट बिकम्स द इनकम ऑफ द बिजनेस फर्म. सो that is how income and consumption are related in an economy. Now, why consumption is important? We have already delved into the importance of wants. हमें पता है wants क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कैसी होती हैं. हमने तरह तरह के consumption देखे, final, indirect, direct consumption देखे. तो consumption important क्यों है हमारे लिए? Consumption important इसलिए है क्योंकि आपने अभी देखा कि ये किसी की आय बनती है, वो बाद में जाकर होता है, लेकिन हमें daily for a basic living we need to consume something. That is the food items, otherwise we cannot live. Then there are some luxury items. As income goes up, we go into the luxury area. हम जैसे जैसे आय बढ़ती है, हम अपने कंजम्पशन को डाइवर्सिफाई करते हैं, उपभोग में और चीजों का हम समायोजन या समावेश हो जाता है, जैसे कि लग्जरी आइटम्स हैं. तो कंजम्पशन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आय अर्जित कर रहा है. देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो नेशनल इनकम को भी डिटरमाइन कर रहा है. वही हम कंजम्पशन फंक्शन में समझेंगे अभी. Now, what is want and desire? It leads to satisfaction. आप अगर किसी चीज की इच्छा रखते हैं, डिजायर कर रहे हैं, then you need to satisfy yourself. For that, you go to the market and buy. So there is an effort involved in that. And in the two-sector economy model, we saw that effort involved. You had gone the household where you're residing as a factor, and you went to buy in the market because market in between कहीं इसके लाई कर रहा है. दोनों सेक्टर मॉडल के बीच में मार्केट आ जाता है, जहां पर एक्सचेंज हो रहा है दोनों चीजों का. तो हमारे लिए वॉन्ट्स हमें सेटिस्फैक्शन देती हैं, हमें कहीं ना कहीं किसी तरह की संतुष्टि प्रदान करती है. मोर ऑफन देन नॉट द सेटिस्फैक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्ट ऑफ कंजम्पशन. नाउ फॉर गिवन डिस्पोजेबल इनकम, deciding how much to consume and how much to save, this is the important part of consumption function when we start consumption function exactly. What is disposable income? ये वो आय है जो खर्च योग आय होती है. एक वो आय होती है जिसमें कि आपकी सारी संपत्ति, पूंजी, सब कुछ समावेश होगा. कार भी आपकी आय में आ जाएगी क्योंकि आपने कुछ आपकी आय का पार्ट कार पर खर्च किया था. आपकी वेल्थ है. जिन लोगों की वेल्थ ज्यादा होती है और जो गरीब होते हैं, अगर इन दो तबकों को कंपेयर किया जाए तो दोज हु आर रिच they tend to consume more. We know that. It's a hard fact. And those who are poor tend to consume less. But the propensity to consume of poor is much, much higher than that of the rich. जो उपभोग करने की प्रवृत्ति है वो किसकी ज्यादा होगी? अमीर की ज्यादा होगी कि गरीब की? Definitely it is more for the rich. So the disposable income is the income which we dispose of totally on our consumption wants. And whatever we keep is not a disposable income, so it does not come in the circular flow of the economy. वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के आर्थिक आपकी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं आ नहीं पा रही है, उसका भाग नहीं बन पा रही है, इसलिए हम डिस्पोजेबल इनकम को ही कंसिडर करते हैं. कंजम्पशन फंक्शन इज अ की रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट्स, टोटल कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. नाउ व्हाट इज नेशनल इनकम? राष्ट्रीय आय. क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आय कहाँ से हम आएंगे? जाहिर सी बात है, हम सारी आयों को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं. सभी लोगों के उपभोग, जो उपभोग पर वो खर्चा कर रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़कर हम इनकम निकाल सकते हैं. हमने मेथड्स इनकम निकालने में पढ़े हैं. तो टोटल कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, देयर इज अ कॉम्बिनेशन. सिंबॉलिकली और मैथमेटिकली कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल इनकम. Okay, we are not talking about the national income. Where C is consumption spending and YD is the disposable income. Now Keynes ने अपनी थ्योरी में जो रिलेशनशिप यहाँ डेवलप की है, यहाँ से उसकी थ्योरी शुरू होती है, जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बहुत मशहूर सिद्धांत है कीन्स का. जॉन मेनर्ड कीन्स, जो कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री रहे हैं, और उन्होंने 1936 में उनकी जो किताब आई थी जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उनमें उसने जो लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट था वो उनका वहां पर इफेक्टिव डिमांड को कहते हैं. तो डिमांड बढ़ाने के लिए उनका कहना है कि आपको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा. कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आय बढ़ानी पड़ेगी. आय बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कोई किसी तरह का हस्तक्षेप करना होगा, जो कि सरकारी हस्तक्षेप के रूप में हो सकता है, और उसी पर बेस्ड उनका पूरा सिद्धांत था. उसी का एक पोर्शन है कंजम्पशन फंक्शन. इसलिए कंजम्पशन फंक्शन को बिना कीन्स के सिद्धांत को समझे हम नहीं पढ़ सकते हैं. Keynes hypothesized that there is a stable empirical relationship between income and consumption. He integrated the consumption function into macroeconomics. तो जब हम डिस्पोजेबल इनकम की बात कर रहे थे वो इंडिविजुअल इनकम थी, हमने सारी आयों को जोड़ा तो राष्ट्रीय आय बनी. तो कीन्स ने जब अपने सिद्धांत को देने की कोशिश की तो उसने कंजम्पशन फंक्शन को जोड़कर सबका कंजम्पशन फंक्शन निकालने की कोशिश की, और इसीलिए हैंसन कहते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन लाइज एट द हार्ट ऑफ द कीन्सियन मॉडल.
Consumption function, as the name suggests, is dependent on certain variables. C is a function of y, C is consumption, F is the function, रिलेशनशिप है, और y जो है वो इनकम है. यहाँ पर हम इसको नेशनल इनकम कह रहे हैं क्योंकि हमने सारी आयों को जोड़ लिया है और कीन्स ने भी इस सिद्धांत को इसी तरह निकाला था. कंजम्पशन फंक्शन इज अ की रिलेशनशिप बिटवीन टू एग्रीगेट्स, टोटल कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम, and this is a disposable income. Now, what is this relationship? If we understand, we can understand by a schedule. What is a schedule? एक सूची, basically, एक तालिका. Schedule वो होता है जहां पर एक तरफ आपने इनकम दी है और दूसरी तरफ कंजम्पशन दिया है. आप इस शेड्यूल में देखेंगे तो जहां पर इनकम जीरो थी लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं होगा. ये हर कोई भली भांति जानता है कि हमारा कुछ इनिशियल लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसका कोई ना कोई लेवल ऑफ कंजम्पशन जरूर होगा. इसलिए कंजम्पशन जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, जबकि आय जो है वो जीरो से शुरू हो रही है. इनकम बढ़ रही है 60, 120, 180, 240, जबकि कंजम्पशन 20, 70, 120, 170, 220. जिस रेट से इनकम बढ़ रही है उस रेट से आय नहीं बढ़ रही है, और यही कंजम्पशन फंक्शन है. बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन की जो मूल आत्मा है, द बेसिक थिंग लाइज हियर दैट as the income increases for anybody, consumption does not increase with the same rate and there is a diversion between the two. दोनों के बीच में एक अंतर पैदा हो जाता है. ये अंतर क्यों होता है? क्योंकि जिस रेट से आपकी आय बढ़ती है उस रेट से आपका उपभोग नहीं बढ़ता है. लेकिन कुछ स्थितियों में ऐसा नहीं होता. जो बहुत गरीब लोग हैं उनका कई बार निगेटिव भी होता है, उनको खाने को भी नहीं मिलता. तो वहां पर कुछ जगहों पर हम मान सकते हैं there are exceptions where the consumption might not increase with the increase in the income. Now, the average propensity to consume may be defined as the ratio of consumption expenditure to the particular level of income. This is a rate. ये सिर्फ एक रेशियो है. जिस रेट से आपकी आय बढ़ रही, जैसे मैंने कहा, जिस रेशियो से, जिस अनुपात से आपकी आय बढ़ रही है, उस अनुपात में आपका उपभोग नहीं बढ़ रहा है, और उसी अनुपात को निकालते हैं तो वो होती है आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति. मैंने पहले कहा था अपने लेक्चर में शुरुआती में कि औसत उपभोग प्रवृत्ति या प्रवृत्ति जो होती है उपभोग की, वो गरीब लोगों की कम होती है, ज्यादा होती है, सॉरी, जबकि उनकी इनकम जो है वो कम होती है. और अमीरों की उपभोग प्रवृत्ति जो है वो कम होती है अगर हम गरीबों से कंपैरिजन करें. सो द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नथिंग बट जस्ट अ स्मॉल रेट. इट्स एन एवरेज ऑफ द कंजम्पशन टू द इनकम. APC declines as income increases because the proportion of income spent on consumption decreases. हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति जैसे जैसे आय बढ़ती है उसके साथ उसके प्रोपोर्शन में वो कंजम्पशन हमारा जो है वो आय के साथ इनिशियली बढ़ता है, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ता, तो इसलिए अनुपात घटता है. तो APS is also equal to 1 minus APC. Now what is APS and what is APC? Average propensity to consume and average propensity to save. औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति. अब यहाँ बचत कहाँ से आ गई? Saving has come here because basically if you see your income, what is it composed of? आप अपनी आय है, अगर आपकी आय बढ़ रही है तो आप कंज्यूम करेंगे, उसके बाद जो बचा रहेगा उसको आप बचत करेंगे. तो आय के दो ही भाग हो सकते हैं, उसको दो ही में डिवाइड किया जा सकता है. तो इसी तरह से नेशनल इनकम की भी जो इनकम आइडेंटिटी इक्वेशन जो C plus S is equal to Y जो सबसे लास्ट में लिखा है, वो नेशनल इनकम को दर्शाती है. यानी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय क्या होगी? उस देश का कुल उपभोग और कुल बचतें. उन बचतों को विनियोग में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, और वही कीन्स ने समझाया था कि ये बचतें अगर बचतें रह जाएंगी और विनियोग में परिवर्तित नहीं होंगी तो हम रोजगार के अवसर नहीं बढ़ा पाएंगे, आय नहीं बढ़ा पाएंगे, और हम पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. इसलिए जरूरी है कि ये S, C plus S is equal to Y में S जो है उसको हम, इसको जरूरी हो जाता है कि ये इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो. तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? एक हो गई औसत, दूसरी है सीमांत. सीमांत जो सिद्धांत है वो मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने एज ए न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट दिया था. 1956 में उनकी किताब पब्लिश हुई थी, थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. उसको इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था. तो जो औसत और सीमांत की जो परिकल्पना है वो यहाँ पर ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा सकते. ये एक मेजर है, ये नापने का तरीका है. सीमांत क्या है? कोई भी चीज जो एज पर खड़ी है, यानी कि अगर हमने 4 एप्पल कंज्यूम किए तो हम 5वां शायद नहीं कंज्यूम कर सकते. अगर हमने 2 गाड़ियां खरीद ली तो तीसरे गाड़ी की भूख हमारे पास नहीं रह गई है. तो औसत क्या होगी कि हमने 2, हम मैक्सिमम अफोर्ड कर सकते हैं 2 गाड़ी, या हम और ज्यादा अगर हमारी डिमांड है तो हम तो 10 गाड़ी भी रखना चाहेंगे, लेकिन क्या हमारी इनकम हमको वो खरीदने के लिए अलाउ कर रही है? सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज, अगर आपकी 1 रुपया भी इनकम बढ़ती है तो उस 1 रुपये में आप उसका कितना पोर्शन अपने कंजम्पशन पर खर्च करेंगे, वो होती है आपकी
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी additional income that increases by even 1 unit is when spent on consumption. That is your marginal propensity to consume. So for anybody, the proportion of an aggregate raise in pay that consumer spends on the consumption of goods and services as opposed to saving. Marginal propensity to consume is present in Keynes' consumption theory and determines by what amount consumption will change in response to a change in income. Consumption कैसे बढ़ेगा? आय नहीं बढ़ेगी तो consumption नहीं बढ़ सकता. So when income increases, in response to change in income, consumption increases. Suppose an employee receives a rupees 500 bonus in an addition to an annual earning. Example है 500 रुपए उसको additional मिला है bonus के रूप में, तो उसमें 400 वो खर्चा कर देता है, तो 100 का वो क्या करता है? 100 rupees he naturally saves. So the marginal propensity to consume would be the rate at which his income had increased and the rate at which he had actually consumed. So the change in consumption and the change in income. So the ratio, जो भी आपके चेंज आय में हुआ है और जो आपका उपभोग में जो परिवर्तन हुआ है, उसका अगर रेशियो निकालें तो वो हो जाती है आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो आपको दिखाई गई है यहाँ पे फॉर्मूले से. दैट इज डेल सी अपॉन डेल वाई. डेल्टा इज चेंज इन कंजम्पशन, डेल्टा सी, एंड डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम. तो जो अनुपात है उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का, वही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, जबकि कुल उपभोग और कुल आय का अनुपात औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है. तो फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी? निश्चित बात है, हम फिर से जाते हैं अपनी इनकम आइडेंटिटी इक्वेशन पर. C प्लस एस इज इक्वल टू वाई. ये पोर्शन है दो, y जो है दो भागों में विभक्त है, कंजम्पशन एंड सेविंग्स. तो इसीलिए डेल सी अपॉन डेल वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम. तो ये तो हो गई आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति. तो बचा क्या? आय, जो आपकी आय है टोटल आय में एक भाग आपका बचत का भी बचा हुआ है, जो एग्जाम्पल हमने अभी हाल देखा था कि 100 रुपए वो बचा लेता है, 400 रुपए वो खर्च करता है, अगर उसको 500 रुपए बोनस के रूप में एडिशनल इनकम मिली है. तो जो 100 रुपए उसने सेव किया है, तो कुल मिला के 500 होते हैं, 400 प्लस 100, सो 400 प्लस 100 will become 500. So 100 is the saving. So what is the marginal propensity to save also we should know. Naturally, mathematically or logically, if you think, marginal propensity to consume and marginal propensity to save will lead to a unitary consumption or 1. So MPS plus MPC would be always equal to 1. Therefore, marginal propensity to save can be derived from MPC, that is 1 minus MPC is equal to MPS. I think this is quite clear now. A long run APC and MPC are equal and approximate to 9. दीर्घकाल में ये 0.9, हम यहाँ पे एक नहीं लिख रहे हैं क्योंकि marginal propensities to consume MPC is always greater than 0 and always less than 1. तो जो MPC का जो रेट आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में इसकी मात्रा निकाली जा सकती है, क्योंकि ये एक रेट है जो चेंज के प्रोपोर्शन को बता रहा है. तो इसीलिए ये 1 से ऊपर नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा. और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, 1 यूनिटरी. सो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, MPS is equal to 1 minus MPC, and MPC is equal to 1 minus MPS. Now, marginal propensity to consume is assumed to be positive and less than unity, which means that consumption is an increasing function of income and increases by less than the increase in income. This is very important here, less than. यानी कि जिस रेट से आपकी कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, उस रेट से आय के अनुपात में कंजम्पशन का जो रेट है वो कम होगा, इसीलिए वो लेस देन है, क्योंकि आय और कंजम्पशन दोनों सेम रेट से नहीं बढ़ते हैं. उन दोनों के अंतर को ही कीन्स ने अपनी थ्योरी में समझाया है कि ये अंतर जो पैदा होता है उसको हमको पाटना पड़ेगा. द डाइवर्जेंस बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम ऑन हायर लेवल्स ऑफ इनकम, नॉट एट लोअर लेवल्स ऑफ इनकम. लोअर लेवल ऑफ इनकम में एवरीबडी विल कंज्यूम वॉट एवर एडिशनल दे आर अर्निंग. So at higher levels of income, there will be a divergence between income and consumption. And that divergence has to be filled by investment, is the basic heart of Keynesian economics. That is, whatever you're saving should be converted to investment. Economic significance of MPC lies in filling the gap between income and consumption by planned investment. So whatever you're saving, so any economy, जितने भी राष्ट्र हैं, उनकी जो growth है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वहां के लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना सेव कर रहे हैं. जिस रेट से वो कंज्यूम कर रहे हैं और जिस रेट से वो सेव कर रहे हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है उस देश की आर्थिक ग्रोथ या
इकोनॉमिक ग्रोथ को बताने के लिए. सो कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन the propensities of saving and propensities of consumption of the people of that country. In the country where you will have higher propensities to consume as well as higher propensities to save will grow more, and those who are having only higher propensities to consume, naturally जो underdeveloped economies हैं, जो गरीब राष्ट्र हैं, वहाँ पर marginal propensity to consume बहुत high होती है और MPS जो MP1 का जो part है वो बहुत कम होता है. तो इसलिए कुछ बचता नहीं है, जो बचता नहीं है वो इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित नहीं हो पाता है. तो इसीलिए जरूरी है कि हम कंजम्पशन को तो बढ़ाएं लेकिन साथ में इनकम भी बढ़ाएं. तो इनकम बढ़ाने के लिए किसी को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ेगा. इसलिए फिर कीन्स कहता है कि वहां पर गवर्नमेंट को आना बहुत जरूरी है एक प्लान्ड इन्वेस्टमेंट में. सो आई विल रीड दिस अगेन. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एमपीसी लाइज इन फिलिंग द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन बाय प्लान्ड इन्वेस्टमेंट मेंटेन द डिजायर्ड लेवल ऑफ इनकम. सिंपल मैथमेटिक्स पे बेस्ड है. जो लीनियर फंक्शन है आपका, अगर मैथमेटिक्स थोड़ी सी आती है तो फंक्शन लीनियर फंक्शन जो होता है, एक लीनियर लाइन, उसका फंक्शन क्या होता है, वो कहां से डिराइव होती है. मैथमेटिकली अ लीनियर कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस बेसिक फंक्शन c इज इक्वल टू a प्लस by. a is the subsistence or minimum level of consumption. That is, when I started my lecture I mentioned that your consumption cannot be zero. Am I right? I think the schedule says that consumption is starting from 20, whereas income is starting from 0. So it can never be 0. Now, A is that portion from 0. On a graph, if you plot that, on a graph, see there is a graph over here. If you plot that graph, you see that the red line where it is cutting the C, that is intercept, it is called as the intercept. So where it is cutting, that is your A. That is your A, the minimum level of consumption. And B is the marginal propensity to consume. C is the total consumption expenditure. I can show with an arrow. It's not going there. The gap here, it's not going. ये जो गैप है दोनों के बीच में, c is equal to a plus by, that is the red line and the 45 degrees line. ये 45 डिग्री वाली लाइन क्या है? ये 45 डिग्री वाली लाइन जो है वो इनकम आइडेंटिटी लाइन है. शुरुआत में हमने अपने मॉडल में बताया था y is equal to c plus s या c plus i, दोनों बोल सकते हैं हम. s जो है इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होके s को हम i से रिप्लेस कर सकते हैं. सो y is equal to c plus s 45 डिग्री एंगल पर जो लाइन है वो है, और जो इंटरसेप्ट है रेड लाइन जो है वो काट रही है इसको. तो जो 0 से वहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका a है. तो दैट इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन. एंड व्हाट इज b? b इज द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन. हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखी थी, वो क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजम्पशन अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम. आई विल गो देयर बैक. That is del C upon del Y. What is del C upon del Y? That is nothing but the slope of the B curve. I go again there. It is nothing but the slope. B is the marginal propensity to consume. That is del C upon del Y. And C is the total consumption expenditure. So, in this graph, A is the vertical intercept. Mathematically, इसको intercept कहा जाता है. और B जो है वो हमारा slope है, और A और B ये दोनों constants हैं. So C is equal to a plus by. This is derived from the linear function, जो mathematics का एक basic linear function है, उस पर ये linear equation derive की गई है. C consumption है, B आपका marginal propensity to consume है क्योंकि वो del C upon del Y है, Y income है और A intercept है जो कि initially 0 नहीं हो सकता consumption उपभोग, तो वो कुछ ना कुछ 0 के ऊपर होगा whatever. Higher economies में, developed economies में A ज़्यादा होगा और underdeveloped economies में A कम होगा. Now, what is this shift in consumption curve? When you see this consumption curve, C is equal to a plus by, ये अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा, और ये नीचे आता है तो अर्थव्यवस्था के लिए कैसा होगा? जाहिर सी बात है, for an economy, if the consumption curve goes up, shifts upwards, naturally it will be better for the economy because you're going for higher consumption as well as you're trying to reach to higher incomes. And if it goes down, it will be lower. So the positive shift and the negative shift.
Increase in real assets and money holding, increase in expectation for the future prices, whereas negative shift is based on increase in interest rates and increase in taxes. अगर आप बहुत ज़्यादा किसी देश में taxes लगा देंगे, तो the result would be that people will not be able to consume more because they will not be able to spend all their income on consumption properly because major part goes in paying taxes. So the demand in the economy will go down. So increase in taxes would be a negative shift for any individual as well as for the economy, whereas the positive shift, increase in real assets and money holding, increase in expectations for future prices. Naturally, as we talk that अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या होगा? Positive shift when we have too much of income coming in our hands, too much of assets, too much of wealth with ourselves, higher incomes will lead to higher consumptions and higher economic growth. This is what Keynes said. So positive shift is given by here. You can see it is upper, whereas the negative shift is lower. The C is lower than that. Now there are some examples which initially I would like to skip because they would not lead to too much of understanding, but very shortly I'll touch upon. C is equal to A plus BY. A is 100, B is 0.8, Y is 400. So from our earlier example, when we had increased the bonus of that person, he saved 100 rupees. His marginal propensity to consume we had calculated 0.8 because 400 divided by 500. What is 400? 400 is the change in consumption and 500 is the change in income. 100 he had saved. So this comes to, consumption comes to 420 with the linear equation C is equal to A plus BY. Sorry. A is 175 and B is 0.75. Just an example, you can again calculate. So for given value of income, we can calculate the consumption expenditure. It's not a difficult thing. In some cases, the function is represented as C is equal to A plus B into Y minus T. Now where from this T has come? T is the taxes because the disposable income we are considering for an individual. हम जब consumption function निकालते हैं तो एक वैयक्तिक आय जो है वो disposable income होती है, उसकी खर्च करने योग्य आय, his disposable income, how much he is going to spend in the market or in the economy which is coming in the flow of the nation. So taxes which he is giving is actually his not disposable income, so we need to subtract his taxes from his total income to get his disposable income. So C is equal to A plus B Y D भी कहा जा सकता है इसको. जो YD है वो आपकी disposable income है जिसको Y minus T से दिखाया जा सकता है. Now Keynesian psychological law of consumption says that men are disposed as a rule on an average to increase their consumption as their income increases, but not by as much as the increase in their income. That is, people, उनका नेचर होता है, एक उनका बेसिक नेचर होता है कि वो कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है, लेकिन जिस रेट से या जिस औसत से आय बढ़ रही है उतनी रेट से कंजम्पशन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है. There can be arguments on this. We might refute this Keynesian theory today because today if we see the kind of market we have come into or encountered, if we see an individual, a young person going out for job, say for example if you all are MA students, you go out for job tomorrow, you get a job of 20,000 rupees, say for example starting or 30,000 rupees. आज की जो औसत उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कारण मार्केट है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अपवाद हो सकता है कि हमारा जो पर्स है, जो हमारी इनकम है, वो हमें उतना खर्चा करने को अलाउ नहीं कर रही है क्योंकि लोगों की डिजायर और वांट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. ये आज की मार्केट का कारण हुआ है क्योंकि मार्केट में इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं दैट व्हाटएवर वी आर कंज्यूमिंग, व्हाटएवर वी आर अर्निंग मोर हैपेंस इनटू कंजम्पशन. फॉर एग्जांपल बीपीओ में नौकरी लगती है कि यंग जवान की, वो ही इज कम आउट एज एन इंजीनियर एंड ही गोज टू अ बीपीओ. BPO pays not more than 20,000 to technical or maybe 30,000, and for an individual ordinary person they pay not more than 10,000 or 15,000 rupees per month. Now they have 4 credit cards in their purse.
So what do we see? The consumption is much higher than the rate of. But initial stages में या initial level पे जब आय बढ़ती है तो consumption बढ़ता ही है, लेकिन higher level पे जब वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पर मंथ अर्न करने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि वो मकान खरीदने की सोचेगा, कार खरीदने की सोचेगा, कहीं ना कहीं सेव करने की सोचेगा, या they will buy bonds or debentures which will go into the national income. So Keynes said that consumption when increases, average मानव स्थिति या मनोवृत्ति नहीं होती है कि उसका कंजम्पशन भी उस रेट से बढ़े अगर आय बढ़ती है तो. 3 related propositions: when income increases, consumption expenditure also increases, but by a smaller amount. We have discussed all this. Thus, it increases less than proportionately. The increased income will be divided in some proportion between consumption and expenditure and savings. Y is equal to C plus S. This is a basic income identity equation which any economist, while giving an economic model, considers. ये basic income identity equation होती है कि जो देश की राष्ट्रीय आय है वो दो में विभक्त है, consumption और savings या investment. Increase in income always leads to increase in both consumption and savings. Now here the table also shows the same kind of schedule what we had seen earlier, but here the saving has come into the picture, the third element, because your income is divided into C plus S. So I or Y we can say. व्यक्ति की आय है तो I होगी और national income है तो Y होगा. So Y is a combination of C plus S. In the first two cases, you see it is minus 20 and minus 10. I gave the examples of a BPO person, of an engineer, who have much higher level of consumption than their savings. So definitely they are not able to save. They are taking loans from banks and others to satisfy their wants. So it is minus 20, minus 10, whereas in the higher stages, you see, it comes as plus 10, plus 20, plus 30. So the assumptions of consumption function, I need not go in detail, that the habit, taste, prices, population growth, taxes, many other things, social customs, ये सब सारी चीजें जो हैं हमारे आसपास, ये सारे कांस्टेंट हम लेकर चल रहे हैं साइकोलॉजिकल कंजम्पशन में, और सिर्फ क्या मान रहे हैं कि कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड करता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. बट यू नो दैट इन इकोनॉमिक्स वी टेक दीज assumptions to prove a particular point. So the assumption is that the habits for that particular time when we are taking the income identity equation Y is equal to C plus S, the habits, tastes, preferences, price movements, price of other commodities, price of the related goods, etc., they are not changing. Only income is dependent on consumption. It assumes the existence of normal conditions, यानी कि कोई war period नहीं है, situations नहीं है, abnormal नहीं है, hyperinflation नहीं है. It assumes existence of laissez-faire capitalist economies and is operative in socialist economies also. I differ here because socialist economies में कीन्सियन थ्योरी बहुत ज़्यादा प्रूव नहीं हो पाई है, बट कीन्स ये लेकर चले थे, मानकर चले थे कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, जो कि खुली अर्थव्यवस्था वाली नीतियाँ होती है, लेज़र-फेयर इकोनॉमी होती है, जहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इंटरवेंशन नहीं होता बहुत ज़्यादा सरकार का, उस तरह की इकोनॉमीज के लिए ये अजम्पशन कीन्स ने लिया था अपने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में. उसने कहा था सोशलिस्ट इकोनॉमीज के लिए भी है. यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है. व्हेन रशिया रेवोल्यूशन के बाद, जब रशिया बना और रेवोल्यूशन के बाद रशिया में सोशलिज्म आया, जो आप लोग जानते होंगे दुनिया में, तो ये रशिया ने अपने 5 ईयर प्लान मॉडल बनाया और उसमें ये तय किया कि उनकी जो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ है 5 साल में 18% ग्रोथ वो अर्जित करेंगे. सारे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस बात को रिफ्यूट कर दिया और उन्होंने कहा, उसमें कीन्स भी थे, कीन्स कैम्ब्रिज में थे तब, ही रिफ्यूटेड दैट यू कैन नॉट, देयर इज नो वे यू कैन अचीव 18% ग्रोथ रेट इन एन इकोनॉमी. And when the 5-year plan completed and the first year completed, Russia achieved 21% of growth rate, I'm sorry. So Keynes had wanted to find an alternative. तो Keynes का जो सिद्धांत है वो उस वक्त दिया गया था जब पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया महामंदी के दौर से गुजर रही थी. When the whole world was undergoing depression, जिसको हिंदी में तीसा की महामंदी कहा जाता है, and the great depression of the whole world. And in this, Europe was the main, highly gripped was Europe, and the effect were felt on all over the world. तो वो जो महामंदी था, डिप्रेशन था, जहाँ पे प्राइसेस गिर रही थी, प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी, इनकम लोगों की कम हो रही थी, एम्प्लॉयमेंट कम बिल्कुल नहीं था, रोजगार के अवसर नहीं थे, कारण थे वर्ल्ड वॉर. पहला वर्ल्ड वॉर हो चुका था और इतने वॉर गुड्स दुनिया में प्रोड्यूस हो चुके थे कि लोगों के पास कंजम्पशन तो था लेकिन मार्केट में जाकर उसको अर्जित करने के लिए कुछ था नहीं. तो पूरी दुनिया में जब ये महामंदी का दौर था तो कीन्स ने तब अपना अर्थशास्त्र दिया था और उन्होंने कहा था कि डिमांड को बढ़ाया जाए तो
देश में रोजगार बढ़ सकता है, तो डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग ही उनकी लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट है कि इनकी थ्योरी का। उन्होंने कहा ये प्रभावपूर्ण मांग तभी बढ़ाई जा सकती है जब कोई हस्तक्षेप करके हम रोजगार प्रोड्यूस करें, यानी कि जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है, सी वाला जो कर्व है, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाए। लेफ्ट वाले से राइट वाले से आप लेफ्ट में जाइए, तो लेफ्ट वाला जो है वो ऊपर है उसका कंजम्पशन। वो कैसे होगा, जब आप एक और कर्व बनाएंगे, यानी कि एक और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का होगा, सरकार एक लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और करेगी, तो ये कर्व पैरेलल शिफ्ट होगा। आप देखिए दोनों सी कर्व एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये तब पॉसिबल होगा जब सरकार और इन्वेस्टमेंट करेगी, तो हम हायर कंजम्पशन पे जा सकते हैं। नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंजम्पशन, कौन कौन से कारक हैं जो हमारे उपभोग को निर्धारित करते हैं। इनकम तो है ही, हम बात ही कर रहे हैं उसके बारे में। वेल्थ है, जो लोग ज्यादा अमीर होते हैं उनकी उपभोग प्रवृत्तियां कम होती हैं, लेकिन उनका उपभोग बढ़ता है इनकम के साथ, और उनका उपभोग निर्भर करता है उनकी पूंजी पर भी, उनकी वेल्थ पर भी। एक्सपेक्टेशंस इन चेंज इन प्राइसेस, चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपके उपभोग पर प्रभाव पड़ेगा। चेंजेस इन फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेस अभी हमने देखा, अगर ज्यादा बढ़ा दें तो आपका उपभोग निश्चित रूप से कम होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, कि आपके संसाधन कितने हैं आपके देश, इसलिए उस देश को ज्यादा विकसित माना जाता है जिसमें ज्यादा संसाधन है, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और जो ज्यादा कम इंपोर्ट कर रहा है, ज्यादा अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसको वो ज्यादा सस्ते दामों पर अपने ही देश में मिलेंगे। तो जितनी ज्यादा गुड्स मिलेंगे, अगर वो सस्ती दामों पर मिलेंगे तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि वही चीज अगर बाहर से आएगी तो आपको ज्यादा महंगी होगी। एटीट्यूड टुवर्ड्स सेविंग, और लोगों की बचत करने की प्रवृत्ति, भारत एक इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वेस्ट में उपभोग करने की प्रवृत्ति और भारत में जो सेव करने की, सॉरी नॉट उपभोग करने की, बचत करने की प्रवृत्तियों में बहुत फर्क है। आज भी हम कहीं ना कहीं अपने समाज में, हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, उसमें हम इफेक्ट तो हुए हैं वेस्ट से, लेकिन अभी भी एक औसत भारतीय की जो प्रवृत्ति है वो सेव करने की ज्यादा होती है एक वेस्टर्न काउंटर पार्ट के हिसाब से। मेजर्स टू रेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम कैसे अपनी उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ये तो हर देश चाहता है कि उसके देश में लोग गरीब ना हो, तो जो भी आय है राष्ट्रीय, वो इस तरह से उसका पुनर्वितरण किया जाए, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए कि सबको बराबर भाग मिले। तो जो भी राष्ट्रीय आय है वो इस तरह से वितरित हो। रियल वेजेस, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, क्रेडिट फैसिलिटीज मीन्स बैंकिंग। इफ बैंकिंग इज मोर, यू हैव मोर earning. But now there is a theory which is coming, because the Western economies who had seen lot of banking, expansion of banking and finance, जो हमने देखा है 20वीं शताब्दी में, उसका असर अभी हम देख रहे हैं डाउनटर्न यूएस में जो चल रहा है। बैंकिंग का इतना बढ़ना लोगों की प्रवृत्तियों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो डिससेव करने लगे। तो यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटीज का डेफिनेटली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे इफेक्ट होता है। एडवर्टीजमेंट्स, आप एडवर्टाइज करके भी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बढ़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा पोर्शन होता है एडवर्टीजमेंट का, लगभग 10 से 20% किसी कंपनी में एडवर्टीजमेंट का जो है वो रखा जाता है बजट। अर्बनाइजेशन भी बहुत ज्यादा। Now theories of consumption, one is absolute theory of consumption, life cycle theory of consumption, and relative theory of consumption. In very short I will go because we have to discuss question and answers. Absolute theory of consumption is also known as the absolute income hypothesis. The absolute income hypothesis is the theory of consumption proposed by English economist John Maynard Keynes. This theory states that real consumption is a function of real disposable income, total net income, and net of taxes. As income rises, the theory asserts consumption will also rise, but not necessarily at the same rate. And therefore, there is a divergence between income and consumption, and the gap is created, which has to be filled by, this is saving, but has to be converted into investment. If you fill that gap, Keynes says, you can move to full employment equilibrium. While this theory has success modeling consumption in the short term, attempts to apply this model over a long time frame have proven less successful. The other is the relative consumption theory developed by James Dusenberry. It states that an individual's attitude to consumption and saving is not solely dependent on income. सिर्फ आय को आधार नहीं मानते हैं वो लोगों के कंजम्पशन की एटीट्यूड को बढ़ने के लिए। Hence, the percentage of income consumed by an individual depends on his position in the income distribution demographic. India is undergoing through the demographic dividend. तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड आने वाला है, अगले 50 साल भारत के लिए कहे जा रहे हैं, 100 साल, वो ऐसे होंगे जहाँ पे हमें एक युवा भारत मिलने वाला है। इसमें हमने कोई इसमें योगदान नहीं दिया है। भारत में ज्यादा मोर नंबर ऑफ
youth would be there. So that demographic dividend, if redistributed properly, India automatically will grow. You don't need any government to do that. Automatically India will go very higher, and that is the reason West हमसे इतना डर या खौफ से बैठा हुआ है. वेस्ट हमारे सामने देखते हुए कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजरने वाला है अगले 50 सालों में. The hypothesis addresses individual consumption patterns. The life cycle theory hypothesis implies that the individual both plan their consumption and savings behavior over the long term and intend to even out their consumption in the best possible manner over their entire lifetimes. Keynes' assumption is that all individuals choose to maintain stable lifestyles. मान के चल रहे हैं कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है. आज के ज़माने में मॉल का कल्चर है, लाइफस्टाइल बहुत बदल चुकी है. दिस implies that they usually don't save up a lot in the one period to spend furiously in the next period, but keep their consumption levels approximately the same in every period. So you have a cycle and it goes on and on and on. The criticism to the consumption function or psychological law of consumption, which is part of Keynesian theory of income and employment, the proportional relationship between consumption and income is not always true. I gave a lot of examples of the mall culture, the market, and the people dissaving in the West, also high propensities to consume at the initial levels of income. It neglects other factors that influence consumer spending, such as urbanization, asset holding, appearance of new products, etc. क्योंकि जिनके पास ज़्यादा एसेट्स हैं उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होती है, ये मानी बात है. आपके पास ज़्यादा वेल्थ होगी, आपकी उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होगी एक व्यक्ति जो गरीब है. एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशन लेवल्स आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंज्यूमर स्पेंडिंग. सो एस्पिरेशंस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. आज का जो यूथ है उसकी एस्पिरेशंस, उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ पर कीन्स का सिद्धांत उस हद तक प्रूव नहीं होता, पर टोटलिटी में उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की थी. और एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, कीन्स ने जब अपना सिद्धांत दिया था तब वो डिप्रेशन से डील कर रहे थे और उन्होंने डिमांड मैनेजमेंट थ्योरी दी थी. तो ये काफ़ी साल तक दुनिया में डिमांड मैनेजमेंट चलता रहा और हम इफेक्टिव डिमांड बढ़ाने की कोशिश करते रहे अपने पॉलिसीज़ के ज़रिए, गवर्नमेंट हस्तक्षेप के ज़रिए और बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए. लेकिन बाद में 75 के बाद जब ऑयल सप्लाई शॉक दुनिया में आए तो कीन्स की थ्योरी फेल हो गई और तब हमने सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स लिखना शुरू किया. तो वो हम यहाँ पे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म दे सकते हैं कि वो सप्लाई को कहीं भी मैनेज नहीं करती है उनकी थ्योरी, और जो कंजम्पशन है वो सप्लाई को लेकर भी नहीं चलता है. हालांकि कंजम्पशन फंक्शन का पार्ट नहीं है वो, बट स्टिल कीन्सियन इकोनॉमिक्स डिड ओनली डिमांड मैनेजमेंट and totally or entirely failed. The demand theories failed when the whole world was gripped under the oil shock of 1975. that सारे देशों ने, अरब राष्ट्रों ने मिलकर एक संघ बना लिया, एक कार्टेल बना लिया, एक मोनोपोलिस्टिक कार्टेल बनाया और उसको उन्होंने फिर प्राइसेस बढ़ा दी. एक एक बैरल ऑयल की प्राइस 100 गुने से बढ़ गई. तो जब ये शॉक लगा पूरी दुनिया में, इतनी तेजी से पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ी, तो उसको कोई भी थ्योरी हैंडल नहीं कर पाई. तो हमें नए सिरे से अर्थशास्त्र के सिद्धांत लिखना पड़े, थ्योरीज लिखना पड़ी, एंड वी स्टार्टेड मैनेजिंग द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट, एंड आई वुड इनवाइट क्वेश्चंस इफ एनी. हाँ, पूछिए, आप जो भी पूछना चाहते हैं, हिंदी अंग्रेजी किसी में भी पूछिए. इसका मतलब ये है कि लेक्चर समझ में नहीं आया. होशंगाबाद, कोई पूछना चाह रहा है कोई सवाल? आई वुड लव टू आंसर एनी क्वेश्चन प्लीज.
अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगी अब आप लोगों से, चूंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो मैं ही सवाल कर लेती हूँ। अगर सरकार नहीं है, गवर्नमेंट है ही नहीं, देयर इज नो गवर्नमेंट, तो फिर हमारे उपभोग का जो होगा, जो कंजम्पशन का जो हमने कर दिखाया था, सी का जो कर था, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। समबडी इज आस्किंग, कोई पूछ रहा है सवाल छिंदवाड़ा से? हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। तो उपभोक्ता में सीमांत उपभोक्ता कुछ नियम बताऊंगा थोड़ा। सुनाई नहीं दिया, आप रिपीट करें, मुझे सुनाई नहीं दी। सीमांत उपभोक्ता कुछ मैं बताऊं, सुनाई नहीं दिया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, टूट टूट कर आवाज आ रही है। सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति क्या मैम? सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति क्या है? हाँ हाँ मैम। हाँ, मैंने पूरे शायद कंजम्पशन फंक्शन में यही समझाया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वो प्रवृत्ति होती है जो ये निर्धारित करती है, निकाली जाती है, या जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि किसी व्यक्ति की आय में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण उसके उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ है। तो उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से हम कैसे दिखाएंगे इसको? तो मैथमेटिकली हम चेंज इन कंजम्पशन, उपभोग में परिवर्तन को चेंज बोलेंगे। तो उपभोग में परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं, तो डेल्टा सी अपॉन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, आय में परिवर्तन डेल्टा वाई। तो उपभोग प्रवृत्ति और कुछ नहीं है, किसी भी समाज की उपभोग प्रवृत्ति निकाली जा सकती है, एक व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्ति को निकाला जा सकता है, एक देश की उपभोग प्रवृत्ति को निकाला जा सकता है, दो देशों की या बहुत बड़े चंक ऑफ कंट्रीज की उपभोग प्रवृत्ति को हम निकाला जा सकता है। हम कहें डेवलप्ड कंट्रीज की हम अलग निकालें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की अलग निकालें। लेकिन एक बहुत, चूंकि आपने सवाल किया, मैं भी आपसे सवाल करना चाहूंगी कि उपभोग प्रवृत्ति जो विकसित राष्ट्र, हम आपसे पूछ नहीं रहे, मैं जवाब नहीं मांग रही हूं, ये एक जनरल सवाल है कि विकसित राष्ट्रों में उपभोग प्रवृत्ति कम होगी या ज्यादा होगी? विकसित राष्ट्रों में अविकसित राष्ट्रों की तुलना में उपभोग प्रवृत्ति कम होगी। यानी कि आपकी जो भूख है, भूख किसकी ज्यादा होती है, गरीब की कि अमीर की? गरीब की भूख ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी आय बढ़े ताकि वो अपनी आय को ज्यादा चीजों पे खर्च कर सके। तो वो कैसे खर्च करेगा जब तक उसकी आय नहीं बढ़ेगी? आय कहां से बढ़ेगी? विकसित राष्ट्रों में आय ज्यादा बढ़ती है, अविकसित राष्ट्रों में लोगों की आय कम है, कि लोग गरीब ज्यादा है वहां पे, इसलिए अविकसित है ना भाई। आपकी राष्ट्रीय आय कम है इसलिए आप अविकसित है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक बहुत अच्छा एक मेजर है जो कि उपभोग में जो परिवर्तन है और आय में परिवर्तन के रेट को समझाता है, इन दोनों में अनुपात क्या है। तो उपभोग में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन हो जाती है आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आप पूरे देश के कंजम्पशन को जोड़ लेंगे, एक साल में क्या कंजम्पशन था, अगले साल क्या था, तो 2013 में आपका कंजम्पशन क्या था देश का, और 2014 में क्या होगा, तो 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो डेल सी आ जाएगा, उसको आपने ऊपर रख दिया, न्यूमरेटर हो गया। और देश की राष्ट्रीय आय 2014 में क्या थी और 2013 में क्या थी और 14 में क्या है, 14 में से 13 की आय को माइनस किया तो डेल वाई आ गया। तो आपने ऊपर न्यूमरेटर में रखा उपभोग में परिवर्तन और नीचे रखा आपने राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, तो देश की भी आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आप निकाल सकते हैं। तो ये कीन्स ने दिया था और कीन्स ने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि हम एक जन की तो निकाल लेते थे, लेकिन कीन्स ने कहा कि हम सबको जोड़कर देश की राष्ट्रीय आय, और उसी वही उपभोग फलन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ही उपभोग फलन है और कुछ नहीं। जो आज पूरा लेक्चर समझाया है वो सारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ही समझाता है। ठीक है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ना चाहिए, ज्यादा होती है तो वो ठीक नहीं है कंट्री के लिए, वो धीरे धीरे कम होना चाहिए, वो कम होगी लोग ज्यादा सेव करें। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको एक मिलना चाहिए, वन आना चाहिए। वन क्या है? उस देश की आय या इनकम है। इनकम को हम 1 यूनिट माने तो गणितीय रूप में, मैथमेटिकल रूप में। ठीक है, तो ये है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। एनीबडी एल्स?
मुझे अच्छा लगेगा, कोई भी सवाल पूछिए, आप छोटा ही हो कैसा भी हो। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक्स अ लॉट। ठीक है मैम। I can see lot of people sitting. छिंदवाड़ा, अभी छिंदवाड़ा से पूछा ना, होशंगाबाद, खंडवा, खंडवा चुपचाप बैठा है। खंडवा से कोई पूछ रहा है? पूछिए पूछिए प्लीज। होशंगाबाद, देन ये क्या है, पन्ना। अच्छा, पन्ना भी है। आप सबका स्वागत है, मुझे बड़ा अच्छा लगा इंटरेक्शन करके, लेकिन अगर आप लोग बोलते तो अच्छा लगता मुझे। रीवा, काफी लोग हैं रीवा में, रीवा से पूछिए प्लीज, बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ रीवा में। सॉरी। खंडवा। नमस्ते मैम। या नमस्ते। मेरा आप नाम अपना नाम सोनाली बताइए। धीमान है। मेरा नाम सोनाली धीमान है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आय को वाय से क्यों दर्शाया जाता है? हाँ, आय को आय को वाय से क्यों दर्शाया जाता है? वाय से नहीं, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। दर्शाने के लिए तो हम कुछ भी ले सकते हैं। बैठिए, आप बैठिए। इसके लिए मुझे बहुत फिलोसॉफिकल जवाब देना पड़ेगा पहले, फिर मैं बताऊंगी वाय से क्यों बताया जाता है। हम एक लेंथ नापते हैं ना, जिसको बोलते हैं लंबाई, है ना। लंबाई किससे नापते हैं? एक स्केल होता है, ठीक है, सेंटीमीटर, इंच, मीटर, किलोमीटर। तो ये मानदंड किसने तय किए? पहले ये हर राष्ट्र में अलग होते थे। आपने देखा होगा, हम बोलते थे पाव किलो, पाव सेर, या सेर का एक वो होता था पुराने जमाने में, अब वो किलो में परिवर्तित कर दिया हमने। किलोग्राम इंडिया में नहीं होता था। तो हमने कोई मानदंड बनाए हैं जो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हर चीज को मापने के लिए बनाए गए हैं। तो ये एक मानदंड बनाया है और कुछ नहीं कि हमने वाई क्या, इनकम को हम दिखाना तो आई से भी दिखा सकते हैं। मैंने इसलिए उसमें शेड्यूल में आई लिखा था, वाई नहीं लिखा था, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल का शेड्यूल था। जो सूची थी वो एक व्यक्ति की सूची थी। अगर पूरे राष्ट्र की आय दिखाना होती तो वहां पर मैं आई नहीं लिखती, वाई लिखती, क्योंकि नेशनल इनकम को सारे इकोनॉमिस्ट या मानकर चलते हैं कि उसको वाई से दिखाया जाता है। सिग्मा, सिग्मा से कोई चीज क्यों दिखाई जाती है? व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, सांख्यिकी, तो उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन को सिग्मा से ही दिखाते हैं, किसी और चीज से नहीं दिखा सकते। तो ये मानदंड है, किसी ने तय किए हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर विचार करके, और ये मान लिए गए। आप चाहे तो आप किसी से भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मानक हमारे सामने रख दिए गए हैं, हम उन्हीं को कहीं ना कहीं उन्हीं का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं और उसको मानकर चलते हैं। सॉरी, इसीलिए वाई से दिखाई है इनकम, और कुछ नहीं। इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। इनकम है, उसको नेशनल इनकम है, इसलिए वाई से। एनवाई से दिखाते हैं, कई किताबों में एनवाई से दी जाती है, मैंने देखा है। एनआई भी लिखते हैं नेशनल इनकम के लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनकम आइडेंटिटी इक्वेशन सारे इकोनॉमिस्ट y इज इक्वल टू सी प्लस आई लेकर चलते हैं। ये पूछना चाहिए था आपको सवाल कि वो y इज इक्वल टू सी प्लस आई लेकर क्यों चलते हैं? आई कहां से आया? y इज इक्वल टू सी प्लस एस है, सी उपभोग है, एस बचत है। जब हमने बताया उपभोग जिस दर से बढ़ रहा है उतनी दर से नहीं बढ़ेगा जिस दर से आपकी आय बढ़ रही, तो दोनों में अंतर पैदा हो जाएगा। वो अंतर जब पैदा होगा, क्यों हुआ? क्योंकि आपने कुछ सेव किया है, आपने सारी जो इनकम बढ़ी उसको खर्चा नहीं किया। तो जो आपने बचत की है वो हो गया आपका दूसरा पार्ट इनकम का। तो इनकम दो भागों में विभक्त होगी, उपभोग और बचत। बचत को जब आप विनियोजन में परिवर्तित करेंगे, एस बराबर आई होना चाहिए आइडियली, तभी देश में विकास होगा ना।
तो आप अगर सारी होल्ड कर लेंगे, लोग में बचत प्रवृत्ति बहुत लोगों में होती है, लोग सोना खरीद लेते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं, वो नेशनल इनकम में नहीं आती है, तो वो काउंट नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपकी नेशनल ग्रोथ को हेल्प नहीं कर रही है। तो आप बचत करेंगे जो राष्ट्रीय फ्लो में आएगी, इन्वेस्टमेंट में परिवर्तित होगी, ये कीन्स ने कहा था। तो अपने आप रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हम पूर्ण रोजगार की स्थिति को अर्जित करेंगे। लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं हुआ ना। अभी जो प्रॉब्लम हुई वेस्ट में, इतना ज्यादा इनकम बढ़ी, उसके बाद भी समस्याएं तो आई ना। क्यों समस्या आई है? वो आज की ग्लोबलाइजेशन और फाइनेंस की प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हमने बहुत सस्ती दरों पर बैंक खोल दिए और फाइनेंस इतना चीप हो गया कि लोगों ने डिससेव करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने उपभोग को इतना ज्यादा बढ़ाते गए क्योंकि उनको बहुत आसानी से उनको पैसा या फाइनेंस मिल रहा था, हर चीज के लिए लोन ले लिया। तो कहीं ना कहीं जाके वो बबल बर्स्ट हो गया और इसीलिए आज जो वेस्ट है वो उस दौर से गुजर रहा है जो फाइनेंशियल क्राइसिस कहलाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।